Good morning to everyone. This is the sum we will be doing now. Rationale Department Stores. Rationale Department Stores has prepared. Rationale Department Stores has prepared the following trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2014. So here we have opening stock of HMT, and then we have purchasers of HMT. There are three departments: Department H, Department M, and Department T. So opening stock, then purchasers, then salaries. Salaries is given in the total, rent and taxes, discount, advertisement, trade expense, depreciation, electricity, carriage outward, everything is given in total. Then we also have the net profit, but this is in total. We would like to know that each of the three departments, what profit have they individually made. So we know the total net profit, but we are interested to know what is the performance of each department, whether they are, how much profit they are making, or they are making any losses. Then in the other side, we have sales of HMT and we have closing stock of HMT. Now prepare departmental trading and profit and loss account for year ended 31st March 2014 after considering the following data. Rent and taxes. Rent taxes जो है उसको we have to allocate in the ratio of area, which is 1:2:1. 1 plus 2 plus 1 is 4. 1 plus 2 plus 1 is 4. मतलब 1/4 H डिपार्टमेंट में, 2/4 M डिपार्टमेंट में, 1/4 इन द T डिपार्टमेंट. ऐसे हमें रेंट एंड टैक्सेस को डिवाइड करना है 45,000 को. देन डेप्रीसिएशन हैज टू बी चार्ज इक्वली. डेप्रीसिएशन 15,000 जो है तीनों डिपार्टमेंट में वी हैव टू चार्ज इक्वली. And of the two salesmen employed, there are two salesmen in HMT department. Rationale business में Rationale जो कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उसमें there are two salesmen. There are two salesmen employed. One worked in department M alone. दो में से एक सेल्समैन सिर्फ M डिपार्टमेंट में काम करता है, and the other one, the second employee, the second salesman works in department H and T. There are two salesmen. One works in M department alone, and the other salesman works in H and T. His salary is allocated equally between H and T. जो सेकेंड सेल्समैन है उसका सैलरी इक्वली H and T डिपार्टमेंट में एलोकेट होता है. And salary of each salesman is 2,500 per month. तो पूरे ईयर का कितना होगा? We have to see that each of the salesmen get 2,500 for per month. तो into 12 करते हैं तो it becomes 30,000. So there are two salesmen. So 30,000 into 2, it is 60,000. And here also we have salaries of 60,000. One जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ एम डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसका सैलरी पूरा 30,000 एम में आएगा. एंड दूसरा जो सेल्समैन है वो एच एंड टी दोनों में काम करता है तो उसका सैलरी 30,000, 2,500 इंटू 12 दोनों डिपार्टमेंट में इट विल बी डिवाइडेड इक्वली. तो 15,000 in H and 15,000 in T. Now, all other expenses except those mentioned in 1 to C, item 1 to C, be allocated in the ratio of sales of the respective department. बाकी का जितना भी expense है, sales ratio में divide करना है.
So let us start this sum. What is the name of the business? Rationale Departmental Stores. So we will write Rationale Departmental Stores. उसमें we will write trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account for year ended 31st. What is the year end? 31st March 2014. 31st March 2014. Now let us start. सबसे पहले to opening stock. This division is given. This division is given. कैसे divide करना? It is given. So go to the question. Opening stock is 45,000, 60,000 and 27,800. So the department H 45,000 and then it is 60,000 and then it is 27,800. After opening stock, what is given? Purchases is given. How much is purchases? 224, 355, 154. So we will write after this we have two purchases. This is also given. How much it is given? 2,24,000. 2,24,000, 3,55,000 and 1,54,000. So purchases के बाद what is given? Sales is given and closing stock is given. Sales is 3,02,600, 453,900 and 151,300. So we will write here in the credit side by sales. This is also given. How much? 3,02,600, 4,53,900 and C department T it is 9,07,800. So let us just make it little big. So after this we have by closing stock. Closing stock is also given. So let us go and see what is the amount. 35,000, 64,000, 75,000. So we will write 35,000, 64,000 and 75,000. So इसके बाद we have salaries, but salaries will come in the P&L account. So what we will do, we will go to the P&L account by salaries. Salaries का के लिए let us go to the working note. तो salaries के बारे में क्या दिया है? Working note. हाँ सॉरी मैं हर बार ये कैसे कर लेती हूँ? आई डोंट अंडरस्टैंड. 2 salaries. तो यहाँ पे थैंक्स, यहाँ पे वर्किंग नोट में सैलरीज. तो सैलरीज को क्या बोला गया है? सैलरीज का वर्किंग नोट क्या दिया है? आउट ऑफ द 2 सेल्समैन 1 वर्कड इन HM डिपार्टमेंट अलोन. तो यहाँ पे 2 सेल्समैन है
सैलरी कितना है से हर एक दोनों में से दोनों सेल्समैन में? एवरी सेल्समैन हैज 2500, that is equal to 60,000. वो this there are two salesmen ना, and there how many salesmen are there? सैलरीज का अमाउंट क्वेश्चन में दिया है 60,000, और एक से each salesman is getting salary how much? 2000, सॉरी ये कितना होता है? 30,000. 2,500 into 1, that into 12, 2,500 is monthly salary. तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो total salary is 30,000. And there are how many salesmen? There are 2 salesmen. तो अभी हमें बताना है दो में से वन सेल्समैन वर्क्स इन डिपार्टमेंट एम अलोन, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम करता है, तो डिपार्टमेंट एम में उसका पूरा 30,000 का सैलरी आएगा. फिर other salesman works in department H and T equally काम करता है, तो उसका सैलरी, so his salary should be divided in both H and T डिपार्टमेंट इक्वली. तो दूसरे सेलमैन का सैलरी भी 30,000 है, उसको इक्वली डिवाइड करो, तो 30,000 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 15,000. किस में आएगा? डिपार्टमेंट एच एंड टी में. तो इसका मतलब सैलरी कौन सा? वर्किंग नोट 1 में बोलते हैं जो पहला सेल्समैन है वो पूरा का पूरा उसका सैलरी विल कम इन डिपार्टमेंट एम, और दूसरा सेल्समैन दोनों डिपार्टमेंट में इक्वली काम करता है एच एंड टी में, तो वहाँ पे उसका सैलरी आधा आधा डालना है. दोनों सेल्समैन को पूरा साल का 30,000 पगार मिलता है, जिसमें से जो एक सेल्समैन है वो सिर्फ एम में काम करता है, तो उसका पूरा सैलरी एम में आ जाएगा. दूसरा सेल्समैन इक्वली एच एन टी में काम करता है, तो उसका सैलरी डिवाइड होगा एच एन टी में 15,000. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सैलरी तो हो गया. इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सपेंस? रेंट एंड टैक्सेस टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ एरिया विच इज 1:2:1. सो रेंट एंड टैक्सेस को एलोकेट करना है एरिया के बेसिस में, तो 2 रेंट टैक्सेस कौन से बेसिस में एलोकेट करना है? रेशो क्या दिया है? व्हाट रेशो हैज बीन गिवन? 1:2:1. रेशो क्या दिया है? 1:2:1. ये रेशो में डिवाइड करना है रेंट एंड टैक्सेस को. तो रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट क्या है? 45,000. रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट क्या है? इट इज 45,000. सो रेंट एंड टैक्सेस के लिए आ जाते.
रेंट टैक्सेस कितना अमाउंट है 45,000. सो डिपार्टमेंट पहला वाला डिपार्टमेंट एच है ना, तो एच में कितना करना है 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 इज हाउ मच 4 ना, 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 4. तो हाउ मच इट इज कमिंग. एम में भी सेम करना है 45,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 एंड टी में 45,000 into 1 divided by 4. So how much you are getting? 11,250, 22,500 and 11,250. ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 45,000. To just cross check your answer, तो we will write 11,250, 22,500 and 11,250. इसके बाद we have डिस्काउंट. डिस्काउंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी क्या लास्ट बोला है, दैट ऑल अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट रेंट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड सैलरी आइटम 1 2 3. पहले आइटम में रेंट टैक्स है, सेकेंड आइटम में डेप्रिसिएशन है, थर्ड आइटम सैलरी है, उसको छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस को हमें सेल्स के हिसाब से डिवाइड करना है, लोकेटेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. So what we will do, थर्ड में सेल्स रेशो निकालते. लेट अस फाइंड आउट द सेल्स रेशो. तो सेल्स रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, एच का सेल चाहिए, एम का सेल्स चाहिए और टी का सेल चाहिए. तो एच का सेल कितना है, लेट अस सी हाउ मच इज द सेल ऑफ एच. 3,02,000. Now we can see 3,02,600 and 4,53,900 and T का सेल इज 9,07,800. कितना जीरो कॉमन है, हाउ मच जीरो इज कॉमन, कितना जीरो कॉमन है, 2 जीरो कॉमन है. तो उसको कट करने के बाद कितना बचता है, एंड 9,078. इससे छोटा करने आएगा हमें, इससे छोटा करने आएगा तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको ही तीनों को ऐड करो क्या आ रहा है और रेशो कर लेंगे. व्हाट इज कमिंग 3026. बिकॉज वी हैव कैलसी, हमें छोटा नंबर नहीं होगा तो भी चलेगा. 9,078. इट इज कमिंग टू 16,643, 16,643 and 16,643. ये 16,643 कैसे आया, 3026, 4539 और 9,078 को ऐड करके, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया. तो ये रेशो में हमें डिस्काउंट को डिवाइड करना है. डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 12,000. सो 12,000 को ये रेशो में डिवाइड करो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट. सो डिस्काउंट कितना अमाउंट है 12,000. डिस्काउंट का अमाउंट है 12,000. सो 12,000 एच, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12,000 और इसको ये रेशो में डिवाइड करना है. 12,000 इंटू 3026 डिवाइड बाई 6643. 12,000 इंटू 4539 डिवाइड बाई, and third one 12,000 into 9,078 divide by 16,643
कौन से डिपार्टमेंट के लिए? H M एंड T। तो ये क्या आंसर आ रहा है? व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग 4000 मिल रहा आंसर। ये सेकेंड वाले में 6000, थर्ड वाले में 2000। आर यू गेटिंग दिस आंसर? 4000, 6000 एंड 2000। तो इधर लिखेंगे सेल्स रेशो 4000, 6000 and 2000. Now same way discount के बाद what is the next one after discount? Advertisement 34,200। इसको भी सेम रेशो में डिवाइड करो। टू एडवर्टाइजमेंट सेम, जिसका भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है उसको सेल्स रेशो में डिवाइड करना है। तो 34,500 को डिवाइड करो रेशो में, जो यहाँ पे दिया हुआ है रेशो निकाला हमने 3026 डिवाइड बाय 16,643। किसको कौन से अमाउंट को डिवाइड करना है? 34,500 इंटू 3026 अपॉन 16,643। हाउ मच आंसर यू गेट? 11,500। एंड सेम वे इसमें मिलेगा 17,250 एंड लास्ट वाले में यू विल गेट 5,750। सो तीनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 34,500। आफ्टर एडवर्टाइजिंग व्हाट वी हैव, आफ्टर एडवर्टाइजिंग के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सपेंस गिवन? एडवर्टाइजिंग के बाद ट्रेड एक्सपेंस दिया है। टू ट्रेड एक्सपेंस ये 9,000 है, जिसका कुछ भी नहीं दिया उसको सेल्स रेशो में डिवाइड करना है। तो अगेन 9,000 को सेम रेशो में डिवाइड करो। हाउ मच यू आर गेटिंग? 3,000, 4,500 एंड 1,500। आफ्टर ट्रेड एक्सपेंस व्हाट इज द अदर थिंग गिवन? डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन को क्वेश्चन में दिया है कैसे डिवाइड करना है? इक्वली। इधर दिया है इक्वली मतलब क्या? 1:1:1। तो यहाँ पे दिया है डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज इक्वली और डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 15,000। तो 15,000 को इक्वली तीन डिपार्टमेंट में डिवाइड करो। यू विल गेट 5,000, 5,000 एंड 5,000। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी we have to class divide in sales ratio। इलेक्ट्रिसिटी को भी सेल्स रेशो में डिवाइड करना है। तो क्या आंसर मिलेगा? 6,100, 9,150 and you are getting 3,050. How much is electricity? It is 18,300 into 3026 upon 16,643, 18,300 into 4,539 upon 16,643 and 18,300 into 9,078 upon 16643. इलेक्ट्रिसिटी के बाद है कैरेज आउटवर्ड। वी हैव कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड। तो ये भी सेल्स रेशो में डिवाइड हो जाएगा सबके लिए। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट सेस जिसका भी कुछ भी नहीं दिया है कैसे डिवाइड करना है, उस सबको रेशो ऑफ सेल्स में डिवाइड करो। सो 6,600 को डिवाइड करो सेल्स रेशो में। सो व्हाट यू विल गेट? 2,200, 3,300 एंड
1100। सारे एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लिया हमने। अभी क्या करना है, अभी फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो 1 minute, yes, 151300। oh shit, I have written, मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा है ना, टी डिपार्टमेंट का सेल, 1 minute, थैंक यू। टी डिपार्टमेंट का सेल इज 151300। सो यहाँ पे भी रॉन्ग होगा फिर ना। टी डिपार्टमेंट का सेल कितना है, 151300। कितना आ रहा है, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग। 3026 प्लस 4539 plus 1513, you get 9078। तो यहाँ पे भी 9078। अभी बराबर आंसर आएगा ना। हाँ, तो इट इज 1, ये अगर हमको इसको छोटा करना है तो और इजीली वी कैन डू। 1 minute, इसको ये तीनों टेबल में आता है, इसको और छोटा करना है तो दिस विल कम, दैट इज 1513 के 2 के टेबल में आता है। ये ये 2 के टेबल में आता है। ये 45391513 के 3 के टेबल में आता है। एंड ये 1513, दिस कम्स इन 1's टेबल। 1513 ones are 1513, 1513 twos are 3026 and 1513 threes are 4539। मतलब ये 2 के टेबल में 3026 आता है, 3 के टेबल में 4539 आता है, 1 के टेबल में 1539। इसको और छोटा चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो तीनों को ऐड करके यू कैन शो। यहाँ पे क्या आएगा, 1513, 2:3:1 में भी दिखा सकते। ओके, नाउ गिव मी दिस, गिव मी द ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसको ऐड करो, कितना आ रहा है। Same we will write here also. तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है,
माइनस करो व्हाट यू आर गेटिंग 68,600 माइनस करो व्हाट यू आर गेटिंग 1,02,900 एंड माइनस करो व्हाट यू आर गेटिंग 44,500। यही आंसर आ रहा है तुम लोग को माइनस करके। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट bought down same amount 68,600 1,02,900 and 44,500. Now we have to carefully see कि कौन से कोई डिपार्टमेंट में लॉस तो नहीं हो रहा। वी हैव टू केयरफुली सी वेदर कौन से डिपार्टमेंट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड। तो 68,600 यहाँ का टोटल है, ज़रा इधर का भी टोटल करो। 15,000, 11, 250, 4,000, 11,500, 3,000, 5,000, 6,100, 2,200 क्या है? हाउ मच इज द टोटल? 4,000 plus 11,500 plus 3,000 plus 5,000 plus 6,100 plus 2,200 कितना आ रहा है? 58,050। मतलब क्रेडिट साइड इज हैवी, मतलब प्रॉफिट है एच डिपार्टमेंट में। तो कितने का प्रॉफिट है वो देखो, माइनस करो टू नेट प्रॉफिट carried down. How much is the profit? 10,000. माइनस करो 68,600 माइनस 58,050 आपको मिलेगा 10,550। सेकेंड कॉलम में भी टोटल करो, देखो कौन सा साइड बड़ा है, वेदर इट इज क्रेडिट साइड इज हैवी और डेबिट साइड इज हैवी। जस्ट सी विच साइड इज हैवी। 1,02,900। तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना आ रहा है, सबको माइनस करो। आपको डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 97,700। डेबिट साइड, क्रेडिट इज हैवी, डेबिट साइड इज ओनली 97,700। सो द प्रॉफिट इज 5,200। क्रेडिट साइड का है 44,500 और डेबिट साइड का टोटल कितना है देखो। डेबिट साइड का टोटल कितना है? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 44,650। क्रेडिट इसका टोटल, डेबिट का टोटल इज मोर देन द क्रेडिट। मतलब डिपार्टमेंट टी जो है उसको लॉस हो रहा है बाय नेट लॉस कैरीड डाउन। कितने का लॉस हो रहा है? 150 का। तो इन द लास्ट कॉलम दैट इज डिपार्टमेंट टी लॉस है। डिपार्टमेंट टी में क्या है? लॉस है। अभी हम हमारा आंसर यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे पता है? प्रॉफिट को ऐड करो और लॉस को माइनस करो। 10,550 प्लस 5,200 इज 15,750। इसमें से माइनस करो 150, आपको आ रहा है 15,600 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। टोटल प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन 15,600। तो उस वो 15,600 कैसे मिला? एच डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एम डिपार्टमेंट का प्रॉफिट को ऐड करके और टी डिपार्टमेंट के लॉस को माइनस करके। लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे। तो ये करके हम लोग को ये आंसर आया 15,600। 15,600। So this we got. Now what we will do, अभी क्या करना है, अभी ये वाला सम हो गया। एनी डाउट्स यू कैन कम टू मी, यू कैन अप्रोच मी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो।